Hello everyone, welcome back to Exam Tracker. Today I am going to discuss the ISLM model. This is an important topic in macroeconomics. From this part, many questions came in previous years. Okay, so let's discuss the today's topic, the ISLM model. So ISLM model, it is also known as Hicks and Hansen approach. Okay, firstly, Hicks developed ISLM model. After that, Hansen extended this ISLM model. That is how it is known as Hicks and Hansen approach, and it is developed by J.R. Hicks in 1937. Okay, so the term IS represent investment is equal to saving in the product market, and LM represents money demand and money supply in the money market, and it is a extension version of the Keynesian simple model. Okay, and this model describe how national income and rate of interest jointly determine the simultaneous equilibrium in money and goods market. So in this model, both national income and rate of interest play important role in determining the equilibrium rate in the money and goods market. Okay, so first of all, we'd like to discuss the goods market and the IS curve. Okay, so goods market is in equilibrium with, and this equilibrium can be discussed with the help of the IS curve, and this IS curve shows combination of interest rate and level of output such that planned spending is equal to income. So IS curve क्या represents करते हैं? It is a combination of interest rate and level of output, and in इसी interest rate and level of output में planned spending is equal to प्लान्ड इनकम कब होगा वो कॉम्बिनेशन दिखाते हैं आईएस कर्व. The goods market equilibrium is in simple extension of income determination with 45-degree line diagram. Now investment is no longer fully exogenous but also determined by rate of interest, which is a policy variable. Okay, so previously Keynesian मॉडल में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सोजेनस था. ओके, एक्सोजेनस वेरिएबल था. नाउ इट इज नॉट no longer a exogenous variable. And here the most important part, rate of interest is also an important determinant of the investment, and when R falls investment increases and vice versa. So जब interest rate decrease होता है या falls होता है, then investment increases. So there is a inverse relationship between falls in investment and rise in interest rate. Okay, so basically IS curve represents the negative relationship between rate of interest and the interest rate. Thus changes in rate of interest affect aggregate demand or expenditure by causing changes in investment demand. So IS curve क्या शो करता है? अगर rate of interest में अगर कुछ changes होते हैं, then it will create changes in the aggregate demand and aggregate expenditure. IS curve related different equilibrium level of national income with the rate of interest. Higher national income, lower the level of interest. So अभी हम लोगों को पता चला कि नेशनल इनकम अगर ज़्यादा होगा, इसका मीनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू जो है वो कम है. ओके, सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दिस टू and that is why the IS curve represents the negative slope. So IS curve क्यों negatively slope होता है? Because interest rate अगर increase होगा, then this plan investment spending क्या होगा? Falls होगा, and that is why IS curve is negatively slope. और इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो डिक्लाइन हुआ है. R1 पहले था, उसके बाद R2 हुआ. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस C प्लस I2 एंड C प्लस I1, ये देखिए जो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है वो ऊपर शिफ्ट हुआ है. ओके, अपवर्ड शिफ्ट हुआ है. सो बिकॉज ऑफ decrease in the interest rate, income increases, and because of this aggregate demand schedule shift upward. Okay, so that is why, and that is how from this diagram we can see that there is an inverse relationship between rate of interest and the national income, and because of this aggregate demand schedule shift up. Okay, now discuss the properties of IS curve. So the first of all, the slope of the IS curve. The IS curve
is negatively slope because higher level of interest rate reduces investment spending and thereby reducing aggregate demand and thus equilibrium level of income. Okay, now the steepness of the curve depends on, अभी जो IS कर्व है जो उसका स्लोप कैसा होगा, स्टीपनेस कैसा होगा, ओके ये फ्लैट होगा ये स्टीपर होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन दोनों का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी जो स्टीपनेस ऑफ द कर्व, मतलब आईएस कर्व कितना स्टीप होगा फ्लैट होगा, दैट विल डिपेंड. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ कैसे रिलेशनशिप है. द स्मॉलर द मल्टीप्लायर एंड द लेस सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज टू चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड स्टीपर ऑफ द आईएस कर्व. सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जितना कम होगा लेस सेंसिटिव होगा इन्वेस्टमेंट, ओके, एंड स्टीप होगा आईएस कर्व. सो मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर कम होगा देन जो है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा. इसका मीनिंग है इंटरेस्ट रेट जितना चेंज होगा उससे कम इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होगे. एज ए रिजल्ट आईएस कर्व इज ए स्टीपर कर्व. Next, the position of the IS curve that will depend on the autonomous spending. Okay, so position of the IS curve will depend on the autonomous spending. If autonomous spending increases, the IS curve will shift to the right. Autonomous spending अगर ज़्यादा होगा, हम लोग ज़्यादा spending करेंगे, then IS curve will shift to right, and vice versa. Next, an increase in autonomous spending, such as investment spending or government expenditure, shift the IS curve to the right. सो अगर इंक्रीज होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे भी तरीके से ऑटोनोमस स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होता है देन आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है. Please note that at points to the right of the IS curve there is excess supply in the goods market. At points left to the IS curve there is excess demand for goods. इसका मीनिंग ये है जो पॉइंट आईएस कर्व से राइटवर्ड साइड में है उसका जो मीनिंग है वो दिखाता है एक्सेस सप्लाई. सो पहले हम लोग आईएस कर्व फिर से एक बार देख लेते हैं. दिस इज द आईएस कर्व. सो राइटवर्ड में जितना भी पॉइंट होगा ये जो है कर्व उसके बियॉन्ड जितना भी कर्व होगा राइटवर्ड ये एक्सेस सप्लाई दिखाते हैं. और जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के लेफ्टवर्ड साइड में आईएस कर्व के लेफ्टवर्ड साइड में सभी जो है वो एक्सेस डिमांड दिखाते हैं. ओके, नेक्स्ट एलएम कर्व. द एलएम कर्व shows the money market equilibrium. Okay, and this money market equilibrium, demand for money, it is a function of interest rate and a real income. So यहाँ पे क्या बोला है कि demand for money, हम लोग जो money demand करते हैं that will be a function of interest rate and the real income. प्लीज कीप इन माइंड दैट यहाँ पे सिर्फ रियल इनकम का बात कर रहे हैं, यहाँ पे मनी इनकम की जो बात है वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. सो इन व्हाइल डिस्कसिंग द एलएम कर्व and while discussing the money market, the demand for money market, then only the real income is taken into consideration. Okay, so next important part is what are the properties of the LM curve. LM curve का properties क्या क्या होता है. and please note LM curve is a positively slope curve. वो IS की तरह negatively slope नहीं होता है, ये positively slope curve होगा. क्यों? This means that an increase in interest rate reduces the demand for money. इसका मीनिंग यही है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है देन इट रिड्यूस द डिमांड फॉर मनी. हम लोग जो आईएस कर्व जब डिस्कस किया था तब क्या डिस्कस किया था कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट. बट जब हम एलएम कर्व डिस्कस कर रहे हैं तब हम लोगों को पता चला है कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा देन इट डिमांड फॉर मनी रिड्यूस होगा. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप एलएम कर्व जो है ये पॉजिटिवली स्लोप कर्व है. टू मेंटेन द डिमांड फॉर मनी इक्वल टू फिक्स supply, the level of income has to rise accordingly. Money market equilibrium implies that increase in the interest rate is accompanied by the increase in the level of income. The greater the responsiveness of demand for money to income as measured by K and lower responsiveness of the demand for money to interest rate as measured by the steeper of the LM will be. अभी जो next important part है,
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो LM कर्व से रिलेटेड है जो आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखना होगा. ओके, द LM कर्व इज ए शेड्यूल of combination of interest rate and level of income such that money market is in equilibrium. So LM curve जो है वो क्या combination show करते हैं, rate of interest and level of income, and उसी combination को show करेंगे जो equilibrium मनी मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं. ओके, द LM कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है. एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई शिफ्ट द LM कर्व टू द राइट. सो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा देन LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा. ओके, एट ऑल पॉइंट्स टू द राइट ऑफ LM कर्व देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर मनी. सो जब हम लोगों ने IS कर्व डिस्कस किया था तब डिस्कस किया था कि IS कर्व के जो राइटवर्ड साइड होता है वो एक्सेस सप्लाई डिनोट्स करते हैं, बट LM कर्व का जो राइटवर्ड साइड होता है वो एक्सेस डिमांड फॉर मनी डिनोट्स करते हैं. ओके, एंड जो लेफ्टवर्ड पॉइंट होता है वो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी डिनोट्स करते हैं. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस चेंजेस इन IS एंड LM कर्व. अगर IS LM कर्व दोनों एक साथ चेंज होगा देन what will be the impact. Okay, if both investment and money supply increases, अगर investment भी increase हुआ and money supply भी increase हुआ then IS LM curve shift to the right. Okay, अगर दोनों investment and supply of money increases then IS curve shift to the right and new equilibrium position will be achieved and rate of interest will be remain the same. सो इस डायग्राम पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. अगर इन्वेस्टमेंट एंड मनी सप्लाई दोनों इंक्रीज होगा देन ये जो डायग्राम है वो जो मनी सप्लाई कर्व है जो IS एंड LM कर्व है वो शिफ्ट होगा. IS कर्व इस तरफ शिफ्ट होगा एंड LM कर्व इस तरफ शिफ्ट होगा. कब शिफ्ट होगा? जब इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग दोनों अगर इंक्रीज होगा then IS curve and LM curve both shift rightward and जो rate of interest है वो constant रहेगा. Okay, next one, effectiveness of monetary and fiscal policy on IS and LM curve. This is a very important पार्ट बिकॉज इस जो ये जो पार्ट है इस पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं. हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बाद में. सो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का इफेक्टिवनेस हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ IS एंड LM कर्व. सो ये जो चार्ट है वो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखिए आप लोगों ने पढ़ा ही होगा केन्सियन रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, क्लासिकल रेंज. ओके, पहले डायग्राम हम लोग देख लेते हैं. ये जो पार्ट है जो हॉराइजॉन्टल ये जो है LM कर्व, ये जो है LM कर्व. ओके, और ये IS कर्व शो कर रहे हैं. ठीक है, सो ये जो हॉराइजॉन्टल पार्ट है LM कर्व का, ये LM कर्व का हॉराइजॉन्टल पार्ट को हम लोग बोलते हैं केन्सियन रेंज, और जो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है LM कर्व इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज, और जो वर्टिकल पोर्शन है LM कर्व का उसको हम लोग क्लासिकल रेंज बोलते हैं. ठीक है, ये है केन्सियन रेंज. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लिक्विडिटी ट्रैप वाला सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, सो इसको इसीलिए केन्सियन रेंज बोलते हैं. ये जो इंक्रीजिंग पार्ट है उसको इंटरमीडिएट रेंज और ये वर्टिकल पार्ट है क्लासिकल रेंज. सो इसी पार्ट में हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे. सो इस स्टार्ट में अभी देखिए केन्सियन रेंज में जो फिस्कल पॉलिसी है वो मोस्ट इफेक्टिव होगा, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगा. सो इस डायग्राम में आप लोग देखिए ये है केन्सियन रेंज. इस केन्सियन रेंज में क्या होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा ये कंप्लीटली इनइफेक्टिव होगा. यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ भी काम नहीं है. ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में ये डिस्कस किया था, एक बार आप लोग देख लीजिए अगर याद नहीं है तो. सो केन्सियन रेंज में मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट इफेक्टिव, इज परफेक्टली इनइफेक्टिव, एंड फिस्कल पॉलिसी ही यहाँ पे इफेक्टिव हो सकता है. ठीक है, केन्सियन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट रेंज है ये मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा इफेक्टिव होगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा. और क्लासिकल जो रेंज है ये मॉनेटरी पॉलिसी फुली इफेक्टिव होगा इस पार्ट में. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव इन द क्लासिकल रेंज. ओके, एंड क्लासिकल रेंज में जो LM कर्व का है, LM कर्व का जो शेप है वो कैसे हो सकता है, वो वर्टिकल होगा. ओके, LM कर्व का शेप जब वर्टिकल होगा देन मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव. LM कर्व का शेप अगर वर्टिकल होगा देन फिस्कल पॉलिसी
in the classical range is ineffective, fiscal policy in the intermediate range is effective and Keynesian range is most effective. Okay, ये जो है ये आप लोग याद कर लीजिए. नेक्स्ट हम लोग अभी थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस वे क्वेश्चंस. एन इंक्रीज, ये दिसंबर 2018 वाला क्वेश्चन है. एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विल इन ISLM मॉडल. सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मीनिंग क्या है? ऑटोनोमस स्पेंडिंग. ऑटोनोमस स्पेंडिंग अगर इंक्रीज होता है देन ISLM मॉडल क्या होगा? ISLM मॉडल क्या हो सकता है? हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं. इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एट ऑल इंटरेस्ट शिफ्टिंग द IS कर्व टू द राइट. देखिए यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होता है देन IS एंड LM बोथ राइटवर्ड शिफ्ट होता है. सो यहाँ पे जो है लेफ्ट वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. सो LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा एंड IS कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा. सो यहाँ पे भी राइटवर्ड है. हम लोग ये भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं. लोअर इंटरेस्ट रेट तो लोअर नहीं हो सकते बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन द सेम. ओके, डी ऑप्शन पढ़ते ऑलवेज मूव इन द इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं हो सकता. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एट ऑल इंटरेस्ट रेट एंड शिफ्टिंग द IS कर्व टू द राइट. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. ए लेस इलास्टिक IS कर्व मीन्स दैट, अगर IS कर्व लेस इलास्टिक है देन क्या डिनोट्स करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव. बोथ A एंड C आर करेक्ट. देखिए हम लोग फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि लेस इलास्टिक IS कर्व. ओके, ये है डायग्राम. सो यहाँ पे जो है IS कर्व लेस इफेक्टिव हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा इफेक्टिव हुआ है, लेस इफेक्टिव ही हुआ है. ठीक है. सो IS1 IS2 दोनों लेस इफेक्टिव होता है और इस रेंज में यानी कि केन्सियन रेंज में मॉनेटरी पॉलिसी इज कम्प्लीटली इनइफेक्टिव. ओके, देन यहाँ पे ऑप्शन कहाँ करेक्ट होगा? मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव, नहीं ये करेक्ट नहीं होगा. मॉनेटरी पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव, यस ये करेक्ट होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, और थोड़ा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव व्हेन, फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव कब होगा? LM कर्व इज लेस इलास्टिक, IS कर्व इज लेस इलास्टिक, LM कर्व इज मोर इलास्टिक, IS कर्व इज मोर इलास्टिक. ओके, सो फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव कब होगा? हम लोग फिर से डायग्राम को देख लेते हैं. ए फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव होगा कहाँ पे? क्लासिकल रेंज में होगा जब IS कर्व जो है वो मोर इलास्टिक होगा. ओके, IS कर्व जो है मोर इलास्टिक होगा. देन हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन है. IS कर्व इज लेस इलास्टिक एंड LM कर्व इज मोर इलास्टिक. यस, ये जो है वो सही है. LM कर्व इज मोर इलास्टिक होगा और IS कर्व इज लेस इलास्टिक हो सकता है. ओके, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, इन केन्सियन रेंज द मॉनेटरी पॉलिसी विल बी परफेक्टली इफेक्टिव, परफेक्टली इनइफेक्टिव, मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव. जो केन्सियन रेंज है मॉनेटरी पॉलिसी भी परफेक्टली इफेक्टिव. वेरी इजी क्वेश्चंस. नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लीड्स टू, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या होगा? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज इन इनकम. ओके, सो अगर हम लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं इसका मीनिंग ये नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा ही होगा एंड इंक्रीज इन इनकम. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. हम लोगों ने आज ISLM मॉडल डिस्कस कर लिया है और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, ठीक है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस करते रहिए और जो मैंने जितना भी इम्पोर्टेंस पॉइंट यहाँ पे दिया है ये सब नोट डाउन करने के लिए ट्राई कीजिए. और जो डायग्राम्स जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये जो चार्ट है ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ISLM का शिफ्ट कब होता है, MPC या मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा देन IS कर्व कैसे शिफ्ट होगा, ये
ये सब के बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड